عمران خان کا قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ عمران خان کی بجائے پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے۔ جماعت تحریک انصاف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 33 ضمنی انتخابات کے حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن شیڈول جاری کر رکھا ہے۔ تو عمران خان نے گزشتہ روز این 193 کے انتخاب سے بھی پل آؤٹ کیا تھا اور اب قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں بھی حصہ نہ لینے کا ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، اگر ہم بات کریں کل کے روز کی تو این 193 سے بھی جو ہے ضمنی انتخاب، وہاں سے عمران خان نے پل آؤٹ کر لیا تھا اور اب جو قومی اسمبلی کی 33 سیٹیں ہیں یہاں پر ضمنی انتخاب ہونا ہے، یہاں پر بھی اب وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جی، پہلے تو جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طرح آپ نے اپنے جو سیٹ کا بتایا جہاں سے انہوں نے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی واپس لیے تھے، اس کے بعد پھر کل ایک اجلاس ہوا گزشتہ روز اور تقریباً 4 گھنٹے یہ اجلاس زمان پارک میں جاری رہا، جس میں تمام تر جو سچویشن ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد ابھی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح سے ایک عمران خان کے خلاف جو عدالتوں میں کیسز ہیں اور ان کی نااہلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں اور ان کے فیصلے آنے ہیں، تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے عمران خان کو 33 حلقوں میں الیکشن وہ خود لڑ رہے تھے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان 33 ضمنی انتخابات کو جو ان کے مقامی کینڈیڈیٹس تھے وہی اس کو کانٹیسٹ کریں گے، جبکہ عمران خان وہاں پر الیکشن مہم چلائیں گے۔ تو اب یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عمران خان ان ضمنی انتخابات میں خود حصہ نہیں لیں گے، بلکہ جو سابق اراکین اسمبلی تھے جو ان سیٹوں پر پہلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے وہی یہ الیکشن لڑیں گے اور عمران خان ان ضمنی انتخابات کی مہم خود چلائیں گے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ جو صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے تو اس میں یہ سیٹیں کسی بھی صورت پہ خالی نہ جائیں، ایک پارلیمانی جو اسٹریٹجی ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ان سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ نہ ہوا جائے، اس کے لیے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو اب عمران خان ان سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑیں گے، جو مقامی ارکان تھے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس پر الیکشن لڑیں گے اور باقاعدہ عمران خان کی جو انتخابی مہم کا شیڈیول ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا جیسے ہی ان کے ڈاکٹرز انہیں اجازت دیں گے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہوں گے لیکن ان کی مہم کے لیے عمران خان خود میدان میں اتریں گے۔ ٹھیک ہے عمر، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو نئی اسٹریٹجی بتائے گا، جیسے کہ عمر کہتے ہیں کہ اب نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اترے گی پی ٹی آئی، اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا ٹیریان کیس اور فورن فنڈنگ کیس ہی وجوہات ہیں یا کوئی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی ہے یہ پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، فروری میں ہی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ دائر ہونے تھے۔ 6 سے 8 فروری کے درمیان یہ کاغذات نامزدگی ان 33 حلقوں میں جمع کرائے جانے تھے ریٹرننگ افسر کو، اور فروری کے پہلے 10 روز میں ہی 2 اہم کیسز ہیں۔ ایک کیس میں عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے جو کہ توشہ خانہ کا فوجداری کیس ہے۔ اچھا، گزشتہ روز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پارٹی فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن کا نوٹس عمران خان کو جاری کیا گیا تھا اس پر بھی انہیں ریلیف نہیں ملا اور وہ ان کی اپیل مسترد ہو گئی تھی۔ پھر جو ٹیریان کیس ہے یہ 9 فروری تک اگرچہ ملتوی ہو گیا ہے لیکن اس میں لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے اور اس میں جو عمران خان کے جو اعتراضات ہیں اس کیس میں اس میں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ 3 کیس ہیں۔ ان تینوں کیسوں کا جو کانسیکوینس ہے اگر دیکھا جائے تو وہ کانسیکوینس جو ہے وہ نااہلی پر منتج ہو سکتا ہے، اور جس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے یعنی 7 فروری کو جو توشہ خانہ کا فوجداری کیس ہے، اگر اس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس اس کے بعد زیادہ لمبا چلتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اہم سٹیج 7 تاریخ کو اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی اور فرد جرم ان میں کرپٹ پریکٹس کی عائد ہو جاتی ہے، ایک بڑا مرحلہ گزر جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کیس میں فیصلہ آنا ہے۔ 16 مارچ کو ان 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں اور 16 مارچ سے پہلے اگر یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہے یا یہ جب الیکشن ہو بھی جائے ایون اس کے بعد کوئی ایسا نتیجہ سامنے آتا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف خود یہ سمجھتی ہے کہ بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر خود یہ رائے پائی جاتی ہے، عمران خان سے جب صحافیوں کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ مجھے جی نااہل کرایا جائے گا، لیکن جو خود انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کون سے کیسز ہو سکتے ہیں جن میں نااہلی ہو سکتی ہے، ان کا جو خدشہ ہے
उसमें एक तोशा खाना केस है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियान का जो केस है वो अभी मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पे है, उसने अभी आगे चलना है, उसका अभी पहला मरहला मुकम्मल नहीं हुआ। जबकि जो तोशा खाना केस है उसमें स्टेज फर्द जुर्म तक आ चुकी है, और फर्द जुर्म की अगर कार्रवाई होती है और उसमें उनकी इंडाइटमेंट हो जाती है तो ये करप्ट प्रैक्टिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो रेफर किया है अपना फैसला इलेक्शन कमीशन इसमें सुना चुका है। तो ऐसे में ये केस जो है ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान के लिए उनका सियासी करियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जबकि जो पार्टी फंडिंग केस है, पार्टी फंडिंग केस में भी जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद गुज़िश्ता रोज हो गई थी, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस मामले को आगे लेके चलेगा और पार्टी फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस है वो अपनी जगह मौजूद है। और उसके कॉन्सिक्वेंस की सूरत में भी जो कि इमरान खान अपने दस्तखतों के साथ ये कहते रहे कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से कोई फंडिंग नहीं ली, तो उसका इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली इमरान खान पे आना है। तो ये वो रीजन हो सकती हैं कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो वापस ठीक है, ये वो वजूहत हो सकती हैं। अदील बड़ाइच ब्यूरो इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। उमर जट ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आगाह करें कि पेशावर धमाका सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेशावर में एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में चारों सूबे के वज़ीर आला, जीपी के वज़ीर आला की भी शिरकत थी। इजलास का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे जाकिर उल्ला से। जाकिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पेशावर गवर्नर हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ ने की। सिक्योरिटी फोर्सेस इदारों के आला अफसरान समेत दीगर आला अफसरान भी उसमें शरीक हुए, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी इस एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हुए। साथ में ये बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने उसमें ये बताया कि एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के हवाले से बातें की। जो पेशावर के पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है तो उस हवाले से बातें की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है और यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। बल्कि सिक्योरिटी लैब्स पे भी उसने बात की कि पुलिस लाइन में ये दहशतगर्द कैसे दाखिल हुआ और ये खुदकश हमलावर जो है ये मस्जिद तक कैसे पहुँचा। उसने बाकायदा तौर पर CCTV फुटेज की भी बात की कि CCTV में देखा जा सकता है कि वो बाइक पे आया और पैदल मस्जिद तक पहुंच चुका है। तो उसने बाकायदा तौर पर तहकीकात के हवाले से कहा कि सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से भी यहाँ पे तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कीमत जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी है। बाकायदा तौर पर शहीदों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई है और जो ज़ख्मी हो चुके हैं इस धमाके के नतीजे में तो उनकी सेहतयाबी के लिए भी बाकायदा तौर पर इस इजलास में दुआ की गई। हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर पुलिस लाइन्स हमले के दौरान सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। मनफी बातें इंतहाई नामुनासिब हैं। विफाक, सूबे और पूरी सियासी लीडरशिप इसकी ऑनरशिप लें, मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। वो पेशावर में एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद होने वालों के लिए 20 और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। नमाजी उनको इंतहाई जालिमाना तरीके से शहीद किया गया। हक़ाइक़ को तस्लीम करने में कोई बात नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम इस वक्त अशकबार है। ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस वाक़या के नतीजे में जो सोशल मीडिया पर नाजायज़ तनकीद का जो सिलसिला रवा रखा गया वो काबिल मज़म्मत है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो जाता। पेशावर में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ ने शिरकत न की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के लिए नहीं जा रहे। दूसरी जानिब परवेज़ खटक ने भी एपेक्स कमेटी इजलास में दावत को सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही करार दिया। कहा, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सरदार एयाज सादिक ने उन्हें ज़ाती तौर पर दोस्त की हैसियत से शिरकत की दावत दी, इसलिए ये कबूल नहीं कर सकते।
जमात तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करूँगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई, नंगी फुस्तायत के ज़रिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक को ख़त्म किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा, इस हुकूमत में दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दी गई। सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन को कोई संजीदा नहीं ले रहा। आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मौशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है? इससे पहले भी मौशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज़ से कुछ नहीं होता। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि मुल्क के साथ ड्रामा किया जा रहा है, पीटीआई वालों को रातों रात उठाया जा रहा है। इमरान खान जल्द टिकट्स का ऐलान शुरू करेंगे। पेशावर वाक़या दहशत गर्दी के बदतरीन वाक़यात में से एक था। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है। चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान खुद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायज़ा लेना शुरू उन्होंने कर दिया है और बहुत जल्द जो है उन्होंने टिकटों के ऐलान भी करने शुरू कर देने हैं। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशत गर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। मुल्क एक तरफ दहशत गर्दी की तरफ जा रहा है और हुकूमत क्या कर रही है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, पार्टी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है, उसी के साथ रहूँगा। नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर ही लड़ेंगे। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तीफा पार्टी से के ओहदे से दिए, पार्टी के साथ हूँ, पूरी ज़िंदगी गुजारी है, इसी पार्टी में रहूँगा। मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए, होनी चाहिए। हम जो मियाँ साहब के साथी हैं, अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, वो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। ये तरीका होता है हर जमात में, जब भी नई जनरेशन आती है पुराने लोग अब एक और रोल में उनको आना पड़ता है। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला अदालत ने SHO थाना अपारा को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कौन से हुक्म की तौहीन हुई। आपने इस वक्त पुलिस समन को चैलेंज किया जब FIR दर्ज ही नहीं हुई थी। वकील ने कहा कि इस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी जिस पर FIR हुई। इस इंक्वायरी की बिना पर पुलिस ने समन जारी किया हुआ था जिसको अदालत ने मुअत्तल किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था। आगाह करें कि PTI मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशगाहें खाली कराने के लिए ऑपरेशन का फैसला CDA PTI अराकीन के लॉजेस में ऑपरेशन आज 2 बजे शुरू करेगा। CDA डायरेक्टर की जानिब से CDA मैजिस्ट्रेट को ऑपरेशन में मावनत के लिए खत, ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल से निमटने के लिए मावनत की जाए। खत का ये मतन है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, आगाह कीजिएगा, आज 2 बजे जो ये ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले अरकान कौमी असम्बली हैं उनको CDA की जानिब से ये ख़त लिखा गया था। पार्लियामेंट की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये कहा गया था, हदायत जारी की गई थी कि वो अपने जो लॉजेस में उनके घर हैं उनको फौरी तौर पर खाली कर दें। लेकिन अब 7 रोज़ गुजरने के बाद भी जिन लोगों ने ये जो लॉजेस में कमरे हैं वो खाली नहीं किए, आज उनके खिलाफ CDA ने ऑपरेशन करने का फैसला किया है। इस हवाले से
के CDA का डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और DMA का जो डायरेक्टर है उनकी जानिब से जो CDA के मजिस्ट्रेट हैं उनको एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त में कहा गया है कि आज मामलत जो है वो फराम की जाए मजिस्ट्रेट की जानिब से कि किसी भी कोई अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद हों। आज CDA की जानिब से 2 बजे ऑपरेशन का जो है वो ऐलान किया गया है कि आज लॉजेस के अंदर जाके स्पीकर असद कैसर से राजा खुर्रम नवाज से इसके साथ साथ जो दीगर PTI के डीनोटिफाई होने वाले अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे आज जो लॉजेस है वो खाली करवाया जाएगा। तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 के करीब ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जिनसे आज पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर यासिर मलिक हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। महंगाई की चक्की मुसलसल चले जा रही है और आवाम इसमें पिस रहे हैं। शहरी महंगाई के सामने बेबस हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। महंगाई की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और ख़ास तौर पर जो कम आमदनी वाले लोग हैं या महदूद आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती जा रही है और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ख़रीदारी अब लोगों की बस से बाहर हो चुकी है। चिकन ब्रायलर गोश्त आमतौर पर ये समझा जाता था कि जो बीफ या मटन नहीं खा सकते वो चिकन खा सकते हैं, लेकिन अब चिकन के गोश्त की कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज चिकन ब्रायलर गोश्त 7 रुपये मज़ीद महंगा हुआ और 549 रुपये फ़ी किलो यानी 550 रुपये फ़ी किलो चिकन ब्रायलर गोश्त हो चुका है। आज लाहौर शहर में अंडे 300 रुपये की हद को क्रॉस कर चुके हैं और फार्मी अंडे 301 रुपये फ़ी दर्जन उनका नर्ख मुकर्रर किया गया है। इस वक्त कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जो कमाते हो कैसे उसमें गुजारा होता है? कुछ नहीं गुजारा हो रहा है, क्या है, दिहाड़ी मिलती नहीं, इधर महंगाई बढ़ी है, क्या करें, कुछ खाने पीने को मिल ही नहीं रहा। गुजारा घी लें, चीनी लें, की चीज़ लें। पहले तो स्टोरों से मिलती थी, अब स्टोरों से वो रेट है जो बैर रेट है, और आप क्या करें? क्या कहोगे आप? यार रोज़ी कमाने आते हो, दिन को रात शाम को कुछ कमा के ले जाते हो। महंगाई का बस क्या करें, आपस में ये लड़ रहे हैं, कोई सही काम नहीं हो रहा। सुबह 8 बजे से आते हैं हम, 12-1 बजे चले जाते हैं, कोई भी नहीं आता। अगर कोई आते तो वो कहता है जो 1200-1500 दिहाड़ी है वो कहता है 800-700 ले लो चलो। अब इतनी महंगाई है तो 1200, 1000, 1500 में भी नहीं गुजारा होता। बिल्कुल, लोगों के जो जज्बात हैं इसी किस्म के हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो इससे शदीद मुतासर नज़र आता है। जी, वजारत तवानाई का बचत प्लान धरे का धरा रह गया। शादी हॉल्स में वक्त की पाबंदी हुई, ना ही मार्केट्स बंद करवाई जा सकी। विफाक की वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 माह गुजर गया मगर प्लान के नकात पर अमल दरामद नजर ना आ सका। इस्लामाबाद से जीशान यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान ऐलान के 1 माह में ही चौपट हो गया। हुकूमत के दिए गए औकात पर दुकानें और मार्केटें बंद हुई, ना शादी हॉल्स। बचत तो ना हो सकी, पावर ब्रेकडाउन से हो गया अरबों रुपए का नुकसान। वफाकी कबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। मुल्क में तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। 3 जनवरी को वफाकी वज़रा की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरबों रुपए की तवानाई बचत के मंसूबे का ऐलान किया गया, जिससे 200 अरब रुपए से जायद की बचत का तखमीना लगाया गया। फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी और दफातर में बरकी आलात के गैर जरूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाएगा। मगर बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी के फैसले पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। जिस तरह हमारे पूरे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है ना, इसी तरह हमारे इन तमाम मसाइल को भी हल करने के लिए एक गवर्नेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत है। ये कितनी बदकिस्मती है कि एक मुल्क जिसके पास 43,000 मेगावाट की बिजली की प्रोडक्शन की सलाहियत मौजूद हो, वो 18,000 या 20,000 प्रोड्यूस कर रहा हो। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10:30 बजे, जबकि मुल्क भर की मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का फैसला हुआ, जिसे 62 अरब रुपए बचत का तखमीना लगाया गया। तवानाई बचत प्लान तो दीगर मुल्क में क्या चंद किलोमीटर के वफाकी दारुल हुकूमत में भी कहीं नाफिजुल अमल नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F7 मरकज में और रात के 10 बज चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट समेत तमाम दुकानें खुली है और यही हाल दीगर सेक्टर्स का भी है। बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखों की पैदावार जुलाई 2023 के बाद रोकने और गैर मौसर पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में 15 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गैर मयारी और गैर मौसर पंखों की रोकथाम के लिए प्लान तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक 3 करोड़ सारिफीन को आसान अकसात पर पंखे दिए जाएंगे, मगर पहले से मौजूद जेर इस्तेमाल करोड़ों पंखों का इस्तेमाल कैसे रुकेगा वाज़ेह नहीं। तवानाई माहिरीन का कहना है कि मुल्क में मौजूद ज़रायों से बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए। KPK में जो गैस की जो CPJ अराउंड आप कह सकते हैं रफ एस्टिमेट है कि 700 MMCFD पर डे से लेके 1 बिलियन CFD तक पर डे है। उनको हम नेटवर्क में डालते हैं तो बिजली बनाते हैं, बजाय ये काम कर रहे हैं। ये तो कोई भी बंदा काम कर सकते। कुदरती गैस से चलने वाले गीजर्स में कॉनिकल बैफल के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया, जिसके 1 साल के अंदर नस्ब किए जाने का प्लान है, जिससे 92 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया है। मुल्क के तमाम सरकारी इदारों के लिए बिजली के मयारी पंखे, LEDs बल्ब और तवानाई के मौसर आलात की खरीदारी का प्लान बनाया गया, मगर ताहाल इस पर अमल दरामद शुरू नहीं हो सका। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले बिजली बल्ब की पैदावार की हौसला शिकनी के लिए टैक्स मुतारिफ नहीं हुए। तवानाई बचत के लिए हाउसिंग के शोबे में नए बाय लॉज के मामले पर भी कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। जहां एक बरस में तवानाई बचत प्लान से 200 अरब रुपए की बचत होना थी, वहीं पर पावर ब्रेकडाउन से सिर्फ एक रोज में 100 अरब रुपए तक का नुकसान हो गया। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।